about the electrostatic analog and the application of the same concept in few problems. Okay, so मैं स्टार्टिंग में हम इस बात से शुरू करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस हैं जो जिनको हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 and then 2p upon r cube, where r cube, r is the distance of observation point from the center of the dipole, right? This is the electric field on axial line. So this is equation number 1. Okay, and electric field on the equatorial line, it is equal to 1 by, this is 4 pi epsilon 0. This is just p upon r cube, here p is the electric dipole moment. And then you have studied few more things, uh, torque, expression for torque on a dipole placed in electric field, uniform electric field. This is torque is equal to p vector cross e vector. So this is equation number 3. And then electrostatic potential energy, U electrostatic, it is equal to minus of p vector dot e vector. So this is equation number 4. So now we can derive this equation of magnetism directly from these 4 equations. How to do this? So what we have to do, we have to change E to B. Okay, we will change E to B, and then uh, this is we will change P to M, electric dipole moment, to magnetic dipole moment, and 1 by 4 pi epsilon 0, 1 by 4 pi epsilon 0 to change to mu naught upon 4 pi. You can have the magnetic equations. So magnetic field on the axial line then could be written as magnetic field on the axial line is equal to, in place of 1 by 4 pi epsilon 0, you have to write mu naught upon 4 pi. Okay, so 2 will remain the same, p will be replaced by magnetic dipole moment divided by r cube. Okay, here the condition is r must be very much greater than the length of the dipole. Okay, and then magnetic field on equatorial line, this is mu naught upon 4 pi, it is half of axial line, so this is just m upon r cube. And another equation is torque on the magnetic dipole placed in uniform magnetic field is equivalent to, torque is equal to, in place of p you can write magnetic dipole moment m, and in electric field be replaced by the magnetic field. Okay, and then you can write here E vector with this and P vector with this. So then magnetic potential energy Um is equal to minus M vector dot B vector. So with this way you can switch from electric field expressions to the magnetic field expressions. So well, I will try to discuss few problems as the application part of this concept. We will shift for the problem number 5.4 of NCERT. NCERT. Okay. आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि what is the magnitude of equatorial and axial fields due to bar magnet of length 5 centimeter. Bar magnet is of length 5 centimeter and the distance is 50 centimeter, and at a distance of 50 centimeters. So here you are assuming that, and you are seeing here that r is very much greater than l. Okay, in the last expression, but I have written yes,
These expressions are possible for r is very much greater than L, is very much greater than L. You have to write it like this. This is r is very much greater than L. So here is the same case. If r is very much greater than L, then magnetic field on equatorial line is equal to mu naught upon 4 pi. It is just magnetic dipole moment divided by r cube. So, and magnetic field on the axial line is equal to mu naught upon 4 pi, twice of this, 2m over r cube, राइट. अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नोन चीज़ें हैं वो कितनी हैं. एक तो हमें आर का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो दिया हुआ है. दिस इज़ 50 सेंटीमीटर. अब आप इसको ऐसा यूनिट्स में चेंज कर दीजिए. 50 क्रॉस सी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -10⁻²है. वे ऐसा यूनिट में चला गया है. ओके. एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट. दूसरा चीज़ आपको एक्सप्रेशन में देखिए, जो म्यू नॉट पॉन 4 पाई है, ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 10⁻7 यूनिट्स है. एम आपके लिए ज़रूरत है जानने की. सो एम को हम यहाँ लिख देते हैं. दिस इज़ 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो जो आपके अननोन पैरामीटर्स जो थे, जो अभी दिए हुए हैं आपको यहाँ, वो ऐसा यूनिट्स में है, तो आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो टेस्ला में आ जाएगा. तो आपको उसमें यूनिट के समेत भरने की ज़रूरत नहीं है. हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जो होगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज m अपॉन r क्यूब. फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10⁻⁷, एंड देन magnetic dipole moment is 0.40 divided by this is r cube. It's 50 क्रॉस 10⁻², ये क्यूब आ जाएगा. ओके. सो यू आर लेफ्ट विद हियर 0.40 क्रॉस 10⁻⁷ divided by this is 5 क्रॉस 10⁻⁻1 cube, which could further be written as 0.40 cross 10⁻⁷. It is 125 cross 10⁻⁻3. Okay. So इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. 0.40 अपॉन 125 क्रॉस 10⁻⁻7 and +3. So it could further be written as 40 upon 125 cross 10⁻⁷ +3. आपने इसको, when you shift this decimal place to the right side, so it will increase, the minus sign will increase. Okay, -2. अब आप इसको ऐसा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग कर दीजिए. 10 से गुणा करने के बाद ये 400 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा, और यहाँ आपका -1 और इंक्रीज हो जाएगा. ओके. सो क्रॉस 10⁻10 माइनस के 10 + 7 +3 माइनस के 7 आ जाएंगे. अब ये आ जाएगा आपका 25 × 125 और 25 16. So this is nearly 3.2 cross 10⁻⁻7 Tesla. So this is the magnetic field on the axial line, equatorial line. So now if you have to find the magnetic field on the axial line, it's just the twice of this. So मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि magnetic field on the axial line just 2 times 3.2 cross 10⁻⁻7 Tesla. It will become 6.4 cross 10⁻⁻7 Tesla.
So we have solved this problem, and this is the application part. So you must try to solve the problems on the basis of the text you have studied so far. अब हम एक बड़े कंसेप्चुअल जो हमने पार्ट पढ़ा है उसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे। अगली प्रॉब्लम जो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं इसको कहूँगा, बहुत सुंदर प्रॉब्लम है ये। आपके पास प्रॉब्लम दी हुई है, इट इज़ ऑफ दिस काइंड के दिस प्रॉब्लम is very very interesting for us to learn the application part of what we have learned from this chapter. इसमें कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 5.5 है, इसमें आप काफ़ी अच्छा सीखेंगे। फिगर 5.5 ये जो फिगर एनसीईआरटी की है, ये आपको ये बताती है कि फिगर 5.5 शोज है स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल पी है इधर, इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड द एरो shows the direction of its magnetic movement. The other arrow shows the different positions and orientations of the magnetic movement of another identical magnetized needle. तो इसके किनारे एक दूसरी जो मैग्नेटाइज नीडल है उसकी जो डायरेक्शंस है वो बताई है। तो आपसे सवाल पूछा है वो ये कि इन विच कन्फिग्रेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, किस पोजीशन के ऊपर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, किस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, किस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और किस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। तो इसका जो रफ आइडिया है, हमने जो अभी टेक्स्ट पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एम और बी के बीच में जो एंगल 90 डिग्री होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा इफ़ थीटा बिटवीन एम एंड बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा इफ़ थीटा बिटवीन एम एंड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी को हमें डिस्कस करके ही पता चलेगा, तो उसके लिए हम इसके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और आप जब इसको पूरा करेंगे तो आप इसमें बहुत सुंदर चीज़ें सीखेंगे। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने के लिए खोलने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह एक मैग्नेट बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये इसका साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, राइट। यदि इसकी घटना कुछ इस तरीके से घटे तो इसके किनारे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगी, वो यहाँ से बाहर को निकल कर आएंगी और इस पॉइंट के ऊपर वो ऐसे होंगी और साउथ पोल के ऊपर टर्मिनेट हो जाएंगी, अंदर की ओर चले आएंगी। और दूसरी साइड में ये कुछ इस तरीके से होगा ऐसे करके, और यहाँ साउथ पोल के ऊपर इनवर्ड चली जाएंगी। इसको हम मार्क लगा देते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। ये देखिए आप ऐसे हो जाएगा और यहाँ ऐसे हो जाएगा और यहाँ ऐसे हो जाएगा। सो सेंटर में अलोंग एक्सियल लाइन ये कुछ डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी और यहाँ से जो फील्ड लाइंस वापस आएंगी उसकी फील्ड डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ओके, अब ये जो अलग अलग पॉइंट्स आपके पास है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ये इसके जो दूसरा मैग्नेटिक नीडल है इसके मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शंस हैं। अब आपने समझना है ये कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हर पॉइंट के ऊपर जब आपने पोजीशंस ढूंढनी है तो आपने एम और बी के बीच में एंगल ढूंढने हैं जस्ट। तो इसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ बी। इस बात का आपने ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बी, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि हमें जो कुछ चीज़ें इसमें काम आने वाली होंगी उसको हम ये लिख लेते हैं कि ये देखिए आप, ये जो मैग्नेटिक जो नीडल हमने सेंटर में चूज़ की है उसके इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डिवाइड बाई आर क्यूब हो जाएगा। और ये जो एक्सियल लाइन के ऊपर होगा, ओके, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ नीडल एट ओ इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ दिस 2 टाइम एम ए अपॉन आर क्यूब होगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होगी। और एक चीज़ हम और इस्तेमाल करेंगे
कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर लोकेट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, जो जिसकी हम पोटेंशियल एनर्जी इसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो सबसे पहले हम ऐसा लिख देते हैं माइनस ऑफ एम डॉट बी होगा। और इसको अपने ध्यान से देखना है कि इसमें आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बी एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज क्रिएटेड बाय ए। सो ये आपको फिर आसानी हो जाएगी। और यदि हम इसको खोलेंगे तो आ जाएगा एम बी एंड बी ए कॉस थीटा। तो आपने बार बार जो है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बी एंड फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए का अपना ध्यान रखना है कि अलग अलग लोकेशन के ऊपर उनके डायरेक्शंस क्या है। सो यहाँ देखिए फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होगा, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होगा, और बाकी इतना काफ़ी है। अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले करते हैं इन कन्फिग्रेशन। हम इसको ले लेते हैं AB1। तो इसको आप नीडल को आप ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। तो फॉर इन कन्फिग्रेशन इसको आप ए मान लीजिए और आप इन पॉइंट्स को आप बी मान लीजिए। मैं यहाँ लिखता हूँ इन कन्फिग्रेशन AB1। तो आपके पास आ जाएगा ये ए आ जाएगा और ये इसका डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। ओके, और साथ में मैं ये लिखूंगा AB2 एंड AB2 इकट्ठा हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, इसका जो बी का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो, और जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन इधर से उधर की ओर, इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ थ्रू नॉर्थ पोल। तो इस केस में क्या है, इसमें जो वी ए है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पर भी देखिए आप, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर। मैं लिख दूंगा एम बी इज परपेंडिकुलर टू बी ए, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो इन दिस केस जो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं ये लिख दूंगा कि U1 और U2 दोनों बराबर होंगे। दिस इज माइनस ऑफ एम बी एंड बी ए कॉस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। आगे हम चलते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम चलेंगे, अब हमारे पास सीरीज वाइज चलते हैं इन कन्फिग्रेशन AB3। इन कन्फिग्रेशन AB3 अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ 3। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर एरो दोनों देखिए बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये देखिए फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बी का डायरेक्शन ये पैरेलल है। सो मैं ये कहूँगा ऐसे, magnetic movement is parallel to magnetic field placed created by the needle at A at O। ओके, सो इसके लिए हम क्या कर देंगे, जो फिर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बचता है तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके लिए लिख दीजिए आप माइनस एम बी और ये एक्सप्रेशन यूज कर दीजिए एक्सियल लाइन वाला। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज 2ma अपॉन आर क्यूब। फर्दर इसको लिख सकते हैं आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ma mb अपॉन आर क्यूब। ओके, सो ये माइनस साइन साथ में रहेगा। इसके बाद हम आगे चले इन कन्फिग्रेशन जो तीसरा है हमारे पास, थर्ड इज ये रहेगा इन कन्फिग्रेशन। अब हमारे पास आएगा AB4। ये ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फोर्थ लोकेशन, इस पार्ट पर चलते हैं। तो इस पार्ट पर आप देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नीचे की ओर है और जो फील्ड है वो ऊपर की ओर है। तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, राइट। सो इन दिस केस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ लिख दूंगा एम बी is anti-parallel to magnetic field at A, so theta is equal to 180 डिग्री, राइट। सो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U4 इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं तो भी सही है, आ जाएगा माइनस एम बी एंड बी ए। ये एक्सियल लाइन के ऊपर है, दिस इज ऑन एक्सियल लाइन, राइट।
ऊपर वाला तो हमारा कुछ गलत हो गया। AB3 में, AB3 में this part is wrong, so 2 will not be here, it is wrong because this part is on the perpendicular bisector, तो इसके लिए ये वाला पार्ट आएगा। so I'm sorry for this, इसका आप ध्यान रखें, तो इसको आप नहीं चूज करें। यहाँ आप ध्यान, आपको समझ आ जाएगा। U4 is equal to minus mu naught upon 4 pi and 2 ma upon r cube into mb and cos 180 degree, that is minus 1, cos 180 degree, that is minus 1. So you are left with, आपके पास जो आंसर आ जाएगा mu naught upon 4 pi, this is 2 ma mb upon r cube. So I will mark this as 1, this as 2, this as 3. So our fourth point is AB5 कन्फिग्रेशन। अब आपके पास है AB5। अब यहाँ चलिए, आप सिचुएशन देखनी है आपने। फिफ्थ लोकेशन पहले ढूंढना पड़ेगा, ये वाला पार्ट है। तो इसमें फील्ड ये जो है मैग्नेटिक मूवमेंट है, और ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड का। सो बोथ आर एंटी पैरेलल वंस अगेन। सो बट इसमें जो फील्ड लिया जाएगा, देखिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, MB is anti-parallel to magnetic field because of the needle A. So theta is equal to 180 degree. अब आपने यहाँ समझना है, आपको ऊपर वाला कंसेप्ट दोबारा फिर समझ आ जाएगा। You have chance to learn it. हमारे पास होता है माइनस MB BA and cos here is 180 degree. But यहाँ आपने जो फील्ड लगाना है, जो A का फील्ड है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, तो आपको ये लगाना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई MA अपॉन R क्यूब। ये फिर आपको बात समझ आ जाएगी, और ये फिर प्लस आ जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आ जाएगा MA MB अपॉन R क्यूब। ओके, सो लास्टली फिफ्थ पॉइंट इज, उसमें आपसे कहा गया है कि AB6 वाले पार्ट को हम देख, ये वाला पार्ट है देखिए। तो ये वाला जो एरो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट को दिखाता है, और ये वाला जो एरो वो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द नीडल ए को दिखाता है। तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इसमें सिचुएशन ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, सो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर AB6 के लिए MB is parallel to magnetic field because of needle A. So इसकी जो potential energy होगी U6 it is equal to minus MB and BA cos 0 degree, so it will remain negative. So इसको हम लिख देंगे BA। अब ये जो इसमें जो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक्सियल लाइन वाला आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा MB, और इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 टाइम MA अपॉन R क्यूब एंड देन cos 0 is equal to 1. So you are left with minus mu naught upon 4 pi and 2 MA MB divided by R cube. So this is a new equation for you. This is number 4 and this is number 5. Okay. अब आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, आपसे सवाल पूछे हैं कि कौन सा कन्फिग्रेशन जो है, पहला सवाल आपसे है, इन विच कन्फिग्रेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ए वाले पार्ट में पूछा कि कौन से कन्फिग्रेशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो आपने ये देखना है कि जिसमें थीटा जो है वो 90 डिग्री बनता है, तो ये Q1 और Q2 ऐसे एक सिस्टम है जिसमें सिस्टम जो है वो कन्फिग्रेशन जो ये कन्फिग्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मैं नए पेज पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे सिस्टम मेरा सपोर्ट नहीं करता इतना ज़्यादा, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसमें ए का जो आंसर है कि जो PQ6 Q1 एंड PQ1 एंड PQ2
PQ1 and PQ2, बिकॉज इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बिकॉज इन दिस केस MB is perpendicular to magnetic field because of needle A. दूसरी बात आपसे पूछी है, वो पूछा है कि इन विच कन्फिगरेशन द सिस्टम इज स्टेबल। सो आपने देखना है कि जब M और B के बीच में एंगल 0 डिग्री है, आप देखिए जरा, यहाँ एंगल 0 डिग्री है, और कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ 0 डिग्री है, हाँ Q3 पर भी 0 डिग्री है। तो ये दो स्पेस ऐसे हैं जहाँ एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जब PQ3 एंड PQ6, रंग बदल देते हैं, PQ3 एंड PQ6 ये स्टेबल पोजीशंस हैं, स्टेबल, ओके, ये स्टेबल होंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट आपसे पूछा है, उसमें पूछा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कितना होगा। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी वाले आर्टिकल में पढ़ा है कि जब थीटा M और B के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ढूंढिए जरा, यहाँ देखिए, ये Q4 में M और B के बीच में एंगल 180 डिग्री है, और आपको कोई लोके, हाँ यहाँ देखिए 5 में, देखिए यहाँ भी एंगल 180 डिग्री, तो हमें लिख सकते हैं Q4 एंड Q5। सो PQ4 एंड PQ5 इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल रहेगा, ओके। अब आपसे एक चीज यहाँ से पूछा, आप देख लीजिए कितना इंटरेस्टिंग ये न्यूमेरिकल है जो आपके दिमाग को काफी हद तक खुलता है। इसके ऊपर हम चलते हैं। विच कन्फिगरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कन्फिगरेशंस। सो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी को आपको ढूंढना है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी विल बी लो व्हेन theta is equal to 0 degree. So theta is equal to 0 degree is in case of Q6 as well as for Q3 in the both the cases. See carefully, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 होगा और इसके बीच में भी 0 होगा। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा फिर मिनिमम किस में होगी। अब एंगल तो डिसाइड करता है, आगे है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल डिसाइड। सो दिस इज, आप इसमें चलिए, इसमें जो नेगेटिव है ये डबल है, 2 टाइम है, और इन केस ऑफ Q3 में है वो उसमें सिंगल नेगेटिव है। आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and equation number 5 it is clear that potential, the lowest potential energy is at PQ6, ओके, PQ6। आपको समझना है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, नेगेटिव वैल्यू का जो स्मॉल अमाउंट होता है, आप नंबर लाइन से जानते हैं, तो मुझे +2 के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। सो ये वाला जो पार्ट है, जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये नेगेटिव में डबल है इसलिए स्मॉलेस्ट है, और ये 5 का हाफ है इसलिए ये लार्जेस्ट है। सो ये आपका आंसर जो वो क्लियर हो जाएगा कि जो PQ6 है, दिस इज इन द lowest potential energy position. So with this I will close my video because my machine will not help me to make the longer videos. So I will make these videos in small step, but I suggest you to write in the comment box यदि आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती है। I can reframe the video once again for the sake of your convenience. मेरा मकसद जो है वो सिर्फ आपको समझाना है, चाहे मुझे जिस मर्जी हद तक इसको रिजॉल्व कर करके बात को रखना पड़े। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बताया गया जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।